Hello everyone, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti, and as you can see on your screen, we are again going to keep up your MCQ series. So this is one of your favorite sessions as far as I get to know from the students, and this is going to be based on your multiple choice questions. Again, before I begin, I would request all of you all who haven't seen the chapter, please go and watch the explanation of the chapter, only then begin with me. Also, in the last session when I had taken up the MCQs for you guys, so you children had told me that ma'am, you're very soft, please be a little loud. So I hope I don't disappoint you today. Forgive me for the past videos whereby I could have been a little soft, so there were some issues with my throat, and then probably here I will try to cater to your requirement. So this is about it. And what are we going to look at? We are going to look at the chapter agriculture. Very interesting chapter, very relevant to India, because agriculture is one of the most important activities that we practice around the world, especially in India. So we will have a look at the multiple choice questions, and you students will be participating with me in answering the questions. So this is a little brief about our Success Series education. You can hit the like button and you can also subscribe to the channel before we begin. Here comes the first question for the day. Across the globe, more than dash percentage of people are engaged in agriculture. So across the globe, what is the percentage of people that are engaged in the activity which we know as agriculture? So we know that farmers, they practice agriculture. Now here they are asking you about the percentage of population that is engaged in the said activity. कितने प्रतिशत लोग agriculture में engaged है, right? So we will look at the options. Here are the options for you. Option A 25%, option B 40%, option C is 50%, and option D being 30%. Your time begins now. Quickly tell me what is the correct answer to this question. Easy question, right? Nothing difficult. Factual question पढ़ाया है आपको चैप्टर में. So here the correct answer undoubtedly will be option C. So across the world, greater than 50% of people are engaged in agriculture. What is agriculture? Agriculture is a primary activity. As I have told you already and taught you already, primary activities कौन सी होती है जिसमें हम लोग natural resources से directly deal करते हैं. और कौन कौन सी activities primary activities में classify होती है? Fishing. फिशिंग भी आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है. गैदरिंग कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है. एंड एग्रीकल्चर एज वी सी इन द क्वेश्चन इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं. ये सब मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. एक और टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं. सेकेंडरी में क्या होता है? जब हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं, मेनली फैक्ट्री से जो डीलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग से जो डीलिंग होती है, वो आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है. नेचुरल रिसोर्सेज से जो डीलिंग होती है वो आपके प्राइमरी में आती है. और टर्शरी मतलब द थर्ड सेक्टर, उसमें जो सर्विसेज होते हैं जो कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं. वी हैव लुक्ड एट द एग्जांपल्स इन योर चैप्टर, सो यू कैन हैव अ लुक एट द चैप्टर इफ यू हैवंट सीन. आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट. Taking you forward to the second question, dash is a primary activity. अब इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है? फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, सो आपको ये आंसर मुझे करेक्ट बताना चाहिए. व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑयल रिफाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड प्रेपरेशन. टाइम बिगिंस नाउ. सिंपल क्वेश्चन. While answering the questions, please try to maintain the format 1B, 2C, 3D, whatever it is, okay? So here the correct answer, option C. Agriculture एक primary activity है. First sort of activity is agriculture. India में सबसे ज़्यादा लोग agriculture में ही employed हैं. So this is about the second question.
क्वेश्चन 3 क्या है? अराउंड -% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. कितने परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर? ऑप्शंस बीइंग 2/3 ऑफ द पीपल, 1/5, option C 4/5, and option D 1/3. So your time starts now. There is a time of 10 seconds. Around what percentage of Indian population is dependent on agriculture? So here guys, the correct answer will be option A. 2/3 of the Indian population, 2/3 of Indian population is engaged in agriculture, which is a primary activity. इससे क्या हो रहा है? इससे ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर में काम तो कर रहे हैं, बट अगर आप रियली देखोगे तो ये अनएम्प्लॉयड है. इसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक एक्टिविटी में शामिल हो और उनकी कंट्रीब्यूशन जब आप देखो तो वो 0% हो टोटल में, तो उसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. जहां हम ये तो सोच रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है क्योंकि वो काम पे जा रहे हैं, बट जब उनकी टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 0% होती है, क्योंकि उस काम में सपोज 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन आप 7 लोग उस काम को कर रहे हो, तो वो 2 लोग तो वेस्ट है ना. तो ये जो वेस्ट लोग इसमें एम्प्लॉयड है उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहते हैं. दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, बिकॉज इट इज डिस्गाइज्ड. यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड है but actually we are not employed. So 2/3 of the Indian population is dependent on agriculture. लेकिन अब it is high time कि हमें services sector और business sector entrepreneurship को develop करना होगा, because तभी हम jobs create कर पाएंगे हमारी ever growing population के लिए, right? Taking you forward to the question 4th, arable land is. So ये जो word है arable land, ये कौन सी land के लिए use करते हैं? Options being land where crops are grown, option B land where trees are cut, option C land which is cleared for agriculture, and option D land where mining is taking place. तो arable land किस land को कहते हैं? इनमें से आपके कुछ options हैं, आप correct answer choose करोगे. Time begins now. If I'm being too fast, let me know in the comment section. कुछ और feedback है तो वो भी बताइए. And if you're liking the sessions, तो let me know of that as well. It will motivate me, right? So question 4 correct answer will be answer A. Arable land वो land होता है जहाँ पे आप crops grow करते हैं. तो एग्रीकल्चर जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उस लैंड को हम एरेबल लैंड कहते हैं. ए फॉर एरेबल, ए फॉर एग्रीकल्चर, इस तरीके से याद कीजिएगा. लैंड वेयर ट्रीज आर कट, ये तो एक डेजर्ट हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन. लैंड विच इज क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड. एंड जहां माइनिंग हो रही है तो वो तो माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है. इट हैज नथिंग टू डू विथ एग्रीकल्चर. सो एरेबल लैंड जहां पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसे एरेबल लैंड कहते हैं. आई होप अब आपको याद हो गया होगा एंड ये क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे. Moving towards question 5, झूमिंग और झुमिंग is practiced in which part of India? झूमिंग एक प्रैक्टिस है, ये कौन से इंडियन स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है या फिर किस पार्ट में प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शंस बीइंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन बीइंग साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट. सो ये जो झूमिंग की बात कर रहे हैं हम, ये विच रीजन ऑफ इंडिया practices this practice? Time starts now. Tell me the correct answer. Just a second. Yeah. So quickly, you must have heard of this terminology while I was teaching you. तो मैंने बताया है आपको इस प्रैक्टिस के बारे में. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 5A. Guys, whoever is participating in it, please write the answers in the format. तो हमें easy हो जाता है चेक करने के लिए, right? So you children must follow the instructions that are given to you. North East वाले रीजन में हम एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. ये एक टाइप की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है. ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. What is slash and burn agriculture? Slash and burn agriculture, shifting cultivation and झूमिंग.
ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। इसमें क्या होता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ के इस पोर्शन में आपने क्रॉप्स ग्रो किया, जब क्रॉप्स ग्रो हो गए तो आप इसे बर्न कर देते हो इस एरिया को, ठीक है, फिर आप इसको छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए, एंड देन यू यूज अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ लैंड। सो इन दिस वे आप क्रॉप्स ग्रो करते हो बट आप बर्निंग प्रैक्टिस करते हो एंड लैंड को कुछ दिनों के लिए फिर से छोड़ देते हो ताकि वो वापस से वो बंजर जो जगह हो गई है जिसको आपने बर्न कर दिया है, ताकि वो वापस से कुछ सिचुएशन में आ सके, देन यू कैन ग्रो क्रॉप्स अगेन। सो इसमें हम लोग लैंड की यूसेज को बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं एंड दिस इज द प्रैक्टिस। इज इट एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस? नो, बिकॉज यहाँ पे बर्निंग इन्वॉल्व है और यहाँ पे हम लैंड को बहुत हानि पहुंचाते हैं बिकॉज वी कल्टिवेट फॉर सम टाइम एंड देन वी लिव इट एम्प्टी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। सो दैट इज वाई वी शुड नॉट डू झूमिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे। दिस इज ऑल अबाउट झूमिंग। सो झूमिंग कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है, ना कि साउथ, ना कि वेस्ट, ना कि साउथ वेस्ट, ना ही ईस्टर्न रीजन में। इट इज द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहां पे ये प्रैक्टिस देखी गई है। Question 6. Which of the following animal is a part of the nomadic herd? तो मैंने आपको nomadic का मीनिंग पढ़ाया था, herding की भी मीनिंग बताई थी। सो इस एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। Your examples are, options are sorry, A camel, B ox, C cats, D rabbits. कौन से एनिमल इसमें से nomadic herd के पार्ट होते हैं? So your option time has begun now. सो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बताया है आपने मुझे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ए, आंसर ए। और कौन से एनिमल्स जनरली नोमैडिक हर्ड में रहते हैं? शिप हो गए, ठीक है, गोट, कैमल, हॉर्सेस or yak is also one form of local animal found. Okay, so this kind of cattle and camels, horses etc. are a part of nomadic herding. Nomadic herding में क्या होता है, वो ये लोग ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वॉन्डर करते रहते हैं, ठीक है, और इसमें कंट्रोल्ड मूवमेंट रहती है लाइफ स्टॉक की। ये लोग नेचुरल फोरेज के लिए एक से दूसरे जगह को जाते रहते हैं। सो जनरली इट इज द कैमल विच इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ nomadic herding और nomadic pastoralism. Pastoralism is also a एक्टिविटी, पास्टोरल एक्टिविटी। लाइफ स्टॉक को यहाँ पे हम लोग हर्ड करते हैं ताकि हम लोग नए नए एरियाज फाइंड कर सके जहाँ पे ये एनिमल्स ग्रेज कर सके या फिर इनको इनका फूड मिल सके। ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो नोमैडिक्स होते हैं, जैसे कि बंजाराज। ये लोग आपको जम्मू एंड कश्मीर रीजन एक्सेट्रा में देखने को मिलेंगे। क्या होता है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये लोग पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। फिर जब थोड़ी सी वैसा मौसम होता है जब इन्हें पहाड़ में जाना होता है तो ये लोग पहाड़ में चले जाते हैं। तो नोमैडिक का मतलब क्या होता है, वो एक जगह सेटल नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दैट दे आर नोन एज नोमैडिक्स। इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी पीपल, एनीबडी, ठीक है। Taking you forward, question 7. Which of the following physical input is required in agriculture? यहाँ पे कौन से वर्ड पे फोकस करना है? इनपुट वाले वर्ड पे फोकस करना है। लेबर, स्लोप, रेनफॉल, सनलाइट। इनमें से कौन सा वो इनपुट है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। इनपुट के बारे में पूछा जा रहा है फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? टाइम इज अबाउट टू एंड। हु हैज गॉट दिस करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, स्लोप तो कोई इनपुट नहीं है, रेनफॉल भी कोई इनपुट नहीं है, सनलाइट भी कोई इनपुट नहीं है। दिस आर बेसिकली योर पार्ट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, जो अफेक्ट करती हैं एग्रीकल्चर को बट इनपुट नहीं है। और ये is a part of your physical terrain, hilly terrain, जो भी हो सकता है। So this is also one of the factors that influences agriculture। लेकिन input हमारा क्या होता है?
इनपुट वो होती है कि जो चीज़ें आपको रिक्वायर होती है प्रोडक्शन में, उसे इनपुट कहते हैं, और प्रोडक्शन के बाद जो आपको मिलती हैं चीज़ें उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट के बाद आपका होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड प्रोडक्शन से आपको मिलता है आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट इज लैंड, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल में अब मान लीजिए आपने कॉटन लिया, तो कॉटन आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन वाला प्रोसेस हुआ, आउटपुट आपको क्या मिला, क्लोथ्स मिल गया। सो क्लोथ्स इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ पे हम ये भी समझ जाएंगे सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी वो होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। कॉटन आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट। सो कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं क्लोथ्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हम पहनते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, राइट। देयर हैज बीन अ ट्रांसफर फ्रॉम नेचुरल टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। यहाँ पे कौन सा हमें इनपुट है, अब लेबर नहीं रहेगी तो क्या आप फार्मिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फार्मर्स नहीं रहेंगे तो विल देयर बी एबल टू बी देयर अ ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है, कैपिटल चाहिए होता है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दिस आर ऑल इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर। Question 8. One of the inputs required in farming is, one second. Options are slope, crops, hill area, machinery. तो अभी मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया, क्विकली बता दीजिए, यहाँ पे तो टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इनपुट का मीनिंग बताया और क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत होती है वो भी बता दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मशीनरी हो जाएगी। जो भी चीज़ आपको प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है वो आपकी इनपुट्स हो जाएगी। मशीनरी हो गया, लेबर हो गई, ठीक है, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारे आपके इनपुट्स हैं। एंड जो आपको लास्ट में मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट इज व्हाट यू रिसीव, व्हाट यू परचेज फ्रॉम द मार्केट। क्वेश्चन 9. कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज डिफाइंड एज। तो ग्रेप्स को जब हम लोग कल्टिवेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर। टाइम बिगिंस नाउ। ये पढ़ाया था मैंने, ग्लॉसरी में भी पढ़ाया था, और जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के क्या नेम्स होते हैं। जब आप ग्रेप्स ग्रो करते हो तो उसे विटिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि राम इज एंगेज्ड इन विटिकल्चर, तो इससे आप समझ जाना कि राम ग्रेप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। So any process that is required or that is related to cultivation of grapes is known as viticulture. Question 10. An example of tertiary activity is. So first question में I have explained you primary, secondary, tertiary. तो इनमें से कौन सा एक tertiary activity का example है? Options are advertising, hunting, agriculture, fishing. Again I repeat, example of tertiary activity: advertising, hunting, agriculture, fishing. टाइम बिगिंस नाउ। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शियरी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, व्हाट सेक्टर इज इट रिलेटेड टू। तो अगर आपको पता है कि टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका आंसर ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। हुएवर हैज गॉट दिस करेक्ट, वेरी वेरी गुड चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है और यहाँ पे कुछ और जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करता है। सो टर्शियरी एक्टिविटी के और क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, और सर्विस रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट। दिस विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ योर टर्शियरी एक्टिविटी। और क्या सर्विसेज हो सकती हैं, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, राइट। बैंक में आप जब जाते हो तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैंक आपको, इंश्योरेंस। तो ये टाइप के जो भी सर्विसेज कभी रहेंगे
वो आपके टर्शियरी एक्टिविटीज हो जाती हैं. सो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इज अ सर्विस, हंटिंग इज डेफिनेटली नॉट अ सर्विस, एग्रीकल्चर इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, फिशिंग भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है. सो एडवर्टाइजिंग इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ टर्शियरी एक्टिविटी. आई होप अब आप इसको नहीं भूलोगे. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 11, फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑलरेडी कवर कर लिया, क्विकली आंसर देना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. टाइम बिगिंस. फिशिंग अभी बताया था, कौन सी एक्टिविटी है फिशिंग, जल्दी से बता दीजिए. So the correct answer here is primary activity. Fishing is an example of primary activity क्योंकि natural activity है, direct activity है, कोई manufacturing या फिर कोई ज़्यादा चेंजेस इन्वॉल्व नहीं है, जैसे नेचुरली अकर करती है उसी टाइप से ये एक्टिविटी की जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. Question 12. The word agriculture has been derived from a Latin word. तो यहाँ हमें एक और चीज़ क्या सीखने को मिल रही है कि ये जो हम लोग एग्रीकल्चर वर्ड यूज़ करते हैं फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ये एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से हमें मिली है. सो ये कौन से लैटिन वर्ड से एग्रीकल्चर वर्ड फ्रेम हुआ? सो द ऑप्शंस आर एगेरी, एगर, agri and agar. Okay, so your time begins now. Agriculture is derived from which Latin word? Agriculture is derived from which Latin word? What will be the correct answer? The correct answer will be option B. Okay, so culture, see, agar and culture. Culture means cultivation. Okay, so it is derived from a Latin word and this is what it means, crop cultivation. So यहाँ से name पड़ता है agriculture. Question 13, growing flowers is identified under, जैसे हमने देखा था cultivation of grapes is called something. Similarly, growing of flowers is known as horticulture, pisciculture, sericulture और viticulture. Time begins now. एक ऑप्शन तो देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हो, बचे आपके 3 ऑप्शंस. सो जल्दी से, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी इजी हो जाता है आपके लिए. ये नेम्स हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं. करेक्ट आंसर इज हॉर्टिकल्चर. ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक में मैं आपको बता दूंगी. देखिए, विटिकल्चर क्या था? ग्रेप्स था. सेरिकल्चर क्या है वो हम आगे देखेंगे. पिसिकल्चर क्या है वो भी बता दूंगी. एंड हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स. तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज विद स्पेलिंग्स आप याद करोगे. कल्चर सेम रहेगा. विटी याद कर लेना, सेरी याद कर लेना, होटी याद कर लेना एंड पिसी याद कर लेना. राइट, एग्रीकल्चर तो आपको ऑलरेडी याद है, विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. Question 4. Seeds are one of the dash of agriculture. ये आंसर भी बता दिया है जब अभी कुछ एक्सप्लेन किया था. तो सीड्स को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो सीड्स यूज होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए क्या होते हैं? इज इट अ प्रोसेस? इज इट एन आउटपुट? इज इट एन इनपुट? इज इट लेबर? टाइम बिगिंस नाउ. So seeds are process of agriculture, seeds are output of agriculture, seeds are input of agriculture और seeds are labor of agriculture. So देखिए, correct answer will be option C. इनपुट मतलब इन, ओके, इन जा रहा है. आउटपुट मतलब बाहर आ रहा है. सो जो मिलेगा वो आउटपुट, और जो यूज होगा उसे हम कहेंगे इनपुट. तो सीड्स तो यूज होते हैं. सीड्स आप सो करोगे तभी तो आपको प्लांट ग्रोथ मिलेगी या क्रॉप्स निकलेंगे. एंड आउटपुट विल बी द फाइनल क्रॉप्स. राइट, सो वट एवर इज बींग यूज इन अ प्रोसेस इज नोन एज इनपुट. एंड सिंस सीड्स आर बींग यूज इन एग्रीकल्चर, सो दे आर इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर. Coming to question 15, shifting cultivation is known as dash in Malaysia. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये तो बता दिया. शिफ्ट कर जाते हो आप एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पर. एक प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टीवेशन किया, उसको बर्न कर दिया, फिर दूसरे में शिफ्ट हो गए, उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. अब इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मलेशिया में किस नेम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस बीइंग खरीफ, झुमिंग, Ludang and Rabi. Time begins now.
Tell me what is it known as? one option we have already discussed. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा लुदांग. ओके, झूमिंग इज ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लेकिन ये नेम इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिया गया है. और यही सेम चीज को मलेशिया वाले लोग क्या बोलते हैं? लुदांग बोलते हैं. जो चीज को हम यहाँ पे वाटर बोलेंगे या पानी बोलेंगे, वही चीज आप बंगाल में जॉल बोल देंगे, राइट? सो इट हैज अ डिफरेंट नेम एवरीवेयर. सिमिलरली व्हेन यू मूव टू मलेशिया, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को लुदांग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज लुदांग. खरीफ क्या है? खरीफ एक क्रॉप ग्रोइंग सीजन है. जब आप कुछ महीने में ग्रो करोगे, अगर उस महीने में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उसको खरीफ सीजन कहते हैं. जब आप क्रॉप्स को विंटर की तरफ ग्रो करोगे तो उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, सो दिस आर बेसिकली द क्रॉप साइकिल्स, टाइम्स जब आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज समथिंग डिफरेंट. कमिंग टू क्वेश्चन 16, रोका एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है. रोका इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. It is followed in, so the options are Brazil, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया. रोका कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है या फिर ये नेम कहाँ पे यूज होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए? टाइम बिगिंस नाउ. टेल मी द करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेट टू मी. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड. कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज पोस्ट कीजिए, वी विल सॉल्व इट फॉर यू. क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर होगा ब्राजील. रोका इज वन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ ब्राजील. ओके, ब्राजील कहाँ पे है ये आप मैप पे देखोगे और मुझे बताओगे. कुछ भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज पूछिए. ठीक है, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ. कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डू गेट इट क्लियर्ड. क्लियर नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके गलती करोगे, विच यू शुड नॉट बी डूइंग, राइट? सो रोका इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड इन ब्राजील. ब्राजील इज द करेक्ट आंसर हियर. Question 17. Nomadic herding is practiced in which of the following states? Nomadic herders के बारे में हमने पढ़ लिया, एनिमल्स जो थे वो पढ़ लिया. अब ये कौन सी स्टेट में आपको ये प्रैक्टिस होते हुए नजर आती है? ऑप्शंस आर राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना. टाइम बिगिंस नाउ. नोमैडिक हर्डिंग क्यों करते हैं? जब किसी समय पे आपको फूड हो, कभी नहीं हो, तो बिकॉज ऑफ द सीजन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, ये सारी चीजों की वजह से लोग इधर से उधर मूव करते हैं या एनिमल्स इधर से उधर मूव करते हैं. हर्डिंग मतलब उनको ग्रेज करना होता है, उनको घास चाहिए, राइट, फॉर देयर फूड. अब किसी सीजन में घास नहीं मिल रहा होगा तो उनको नोमैडिक्स बनना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है. तो ये कहाँ पे हो सकता है? ये राजस्थान में हो सकता है. क्योंकि क्या है इसके पीछे रीजन? राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया. और जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था कि कैमल इज वन ऑफ द नोमैडिक हर्डर्स. तो कैमल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में देखने को मिलते हैं, राइट? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान. दिस इज हाउ यू विल गेट द क्वेश्चंस करेक्ट. तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ये सब साउथ के स्टेट्स हैं एंड दिस आर नॉट द करेक्ट आंसर्स. यहाँ पे जनरली आपको मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड नहीं देखने को मिलता है. इनकी लाइफ स्टेबल होती है. ठीक है, सो द आंसर हियर इज राजस्थान and camel is one of the animals. Question 18. If someone starts rearing silkworms, आप में से कोई अगर कल silkworms, जो एक टाइप का, जैसे आपने अर्थवर्म देखा है वैसे ही सिल्कवर्म्स होते हैं, अगर उनको रियर करना आप शुरू कर दो तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? कल अगर आप आए मुझसे मिलने एंड आई एम रियरिंग सिल्कवर्म्स, व्हाट विल यू से दैट आई एम डूइंग? ओके, सो इज इट हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्योंकि ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं तो आप मुझे करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो. इन कमेंट सेक्शन प्लीज राइट इट इन द फॉर्मेट 18A और B और C और D. ओके, गिव मी जस्ट वन आंसर. Correct answer guys here will be very very simple, sericulture. S for silkworms, S for sericulture. Okay, this is how you are going to remember. Horticulture क्या था? Flowers थे, right? What was viticulture? Grapes. What was agriculture? Crops, general crops. And what is sericulture? Silk.
और पिसिकल्चर फिर क्या हो जाता है? पिसिकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ फिश. ओके, सो ये सारे नेम्स आपको याद रखने हैं. कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, उसके आगे का जो वर्ड्स चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग कल्टिवेशन अलग अलग सी हो जाएगी. क्वेश्चन 19. इन द यूएसए विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश इज ग्रोन एक्सेसिवली. बहुत ज्यादा क्या ग्रो किया जाता है? इज इट मिलेट? इज इट wheat? Is it rice? Or is it maize? Time begins now. What should be the correct answer? Just tell me clearly. Tell me fast. Answer here will be option B. Okay, so this is the correct answer. Question 20. In India, wheat is grown during dash season. अब एग्रीकल्चर के बहुत सारे सीजन्स होते हैं. कुछ क्रॉप्स के लिए आपको हॉट सीजन की ज़रूरत होगी, कुछ क्रॉप्स के लिए आपको रेनफॉल की ज़रूरत होगी, कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको विंटर सीजन की ज़रूरत होगी. सो उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारा एग्रीकल्चरल सीजन्स डिवाइडेड है. और वीट को हम लोग कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. ऑप्शन 1 स्प्रिंग, ऑप्शन बी ऑटम, ऑप्शन सी विंटर एंड ऑप्शन डी समर. टाइम बिगिंस नाउ. So yes, what have you all answered? The answer here will be option C. W for wheat, W for winter. इंडिया के विंटर सीजन में वीट की ग्रोथ होती है. पंजाब, हरियाणा ये सारे हमारे वीट ग्रोइंग रीजन्स है. और विंटर वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं. बाकी जो समर सीजन के होते हैं उनको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स होते हैं. इन दोनों के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको जैद क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, चैप्टर में सब कुछ बताया हुआ है. यू विल हैव टू लुक एट द चैप्टर इफ यू आर फॉलोइंग facing problems in all of this. So please clear the concepts from the chapter. Question 21. Extraction and production of natural resources is identified under dash activity. Extraction and production of natural resources को किस टाइप की एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं? ऑप्शंस बीइंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और नॉन रिन्यूएबल. टाइम बिगिंस नाउ. So extraction and production of natural resources, very very easy. I'm giving you another 1 second, 2 seconds. Okay, tell me if you have not got the answer correct, what will it be? Should it be primary? Should it be secondary, tertiary? What is it? It is a primary activity. Extraction and production of natural resources is a primary activity. Tertiary में services आ जाती है, secondary में manufacturing of products आ जाते हैं. Question 22. Agriculture is most favorable in dash regions. सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल ग्रोथ आपको कौन से रीजन्स में देखने को मिलेगा? प्लेन रीजन्स, डेजर्ट रीजन्स, माउंटेन रीजन्स और रॉकी टाइप ऑफ रीजन्स. रीजन मतलब स्पॉट्स. टाइम हैज बिगन. प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, रॉकी प्लेसेस में. Where is agriculture most suitable and most best? It is in the plain regions. तो जब मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स पढ़ाए थे तब ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको प्लेन रीजन्स में देखने को मिलती है. हिल्स में, डेजर्ट्स में, रॉकी एरियाज में लेस पॉपुलेशन. इसको क्या कहते हैं? स्पार्स पॉपुलेशन, राइट? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन प्लेन एरियाज में क्यों ज़्यादा रहती है? एक तो यहाँ पे रिवर्स रहते हैं और यहाँ पे लाइफ इजी रहती है क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये सब बहुत आसान होता है. दिस लैंड इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एट्सेट्रा. इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हुए मिलते हैं. Coming to question 23, dash is one of the important inputs of farming. Fertilizers, crops, plain region, fruits. Time begins now. इस क्वेश्चन पे तो मैं कुछ टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. इनपुट्स मैंने आपको पढ़ा दिया है.
फार्मिंग क्या होती है वो आप जान लिए हो, और इनमें से कौन सा एक इनपुट का एग्जाम्पल है, वो है आपका फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इज एन इनपुट दैट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस। बिना फर्टिलाइजर के कैन यू प्रोड्यूस क्रॉप्स? यू कैन नॉट प्रोड्यूस क्रॉप्स, सो इट इज एन इनपुट ऑफ फार्मिंग। तभी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे। Question 24. Art and science of soil cultivation to rear crops is known as agriculture, viticulture, sericulture or horticulture. Time starts now. Give me the correct answer. विटिकल्चर पढ़ा दिया, सेरिकल्चर भी पढ़ाया, एग्रीकल्चर तो पूरा चैप्टर ही है, और हॉर्टिकल्चर भी पढ़ा दिया. So growing of crops is what? It is agriculture. Anybody who has got this wrong, very, very bad. Okay, very, very bad. Please go take out the chapter and study properly. Agriculture is crops. Viticulture, again I repeat, is grapes. Sericulture is silk. And horticulture is flowers. Pisciculture is fish. बता दिया है. Please learn it. Learn it by heart. Question 25. Shifting cultivation is primarily practiced in the regions where dash takes place. सबसे ज्यादा shifting cultivation कौन से एरियाज में देखने को मिलती है? सुनामी वाले एरियाज में, हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में, ड्राई वेदर वाले एरियाज में, या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज. टाइम बिगिंस नाउ. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Shifting cultivation is practiced in what kind of areas? Shifting cultivation is practiced in which regions? What kind of regions? Think on it again. Important question. So here the correct answer will be B. Okay. So with this we end your 25 questions, and I hope you have been able to understand everything. Now this is our channel Success CDs. We bring to you many such awesome courses. You can follow us on Facebook, Twitter, YouTube, and do not forget to hit the bell icon, guys. If you hit the bell icon, तो जो भी हमारे lectures हैं उनके updates आपको जल्द ही मिलते जाएंगे. So do stay connected with us. Also अगर कुछ feedback है तो please let me know in the comment section. Looking forward to meet you all with the next set of lessons. Bye bye. Take care.